All set to embark on another yatra, and this time it is against the alleged vote chori. As part of the Voter Adhikar Yatra, Rahul Gandhi will be crisscrossing poll-bound Bihar, covering more than 20 districts in 16 days. This yatra starts from Bihar's Sasaram and will culminate at Patna's Gandhi Maidan on the 1st of September. Now, the Congress party's allies in Bihar, including the RJD, the CPI-ML, the CPM and CPI, are also likely to participate. So this march is also going to be about the opposition unity, as all the allies are coming together for this yatra. In fact, the Congress party has gone a step further and has equated Rahul Gandhi's march to Mahatma Gandhi's struggle, calling the yatra a second freedom struggle being waged to save voting rights. सबसे बड़ा अधिकार अगर कोई है, धर्म, जाति, इन सब के अलावा, तो वोटिंग राइट, वोट का अधिकार, आज वही खतरे में है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हम उसी को बचाने के लिए एक दूसरी आजादी की लड़ाई के लिए निकले। राहुल गांधी जी बिहार से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। अगर वन पर्सन वन वोट नहीं होगा तो देश में तानाशाही आएगी, और जो भाजपा लाने की कोशिश कर रही है उसके खिलाफ हमारी ये यात्रा है, जन यात्रा है। याद कीजिए 17 तारीख को बिहार के सासाराम से हमारी वोट अधिकार यात्रा, एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू होने जा रही है। आजाद भारत में आजादी से सांस लेना इसीलिए संभव है क्योंकि वोट देना संभव है। अगर हम वोट नहीं दे सके तो हम आजाद भारत में आजाद तरीके से सांस भी नहीं ले सकते। जिस ढंग से फर्जी तरीके से वोट जोड़ना, फर्जी तरीके से वोट काटना, भारतीय जनता पार्टी का ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं, उनकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है। और खास तौर पे बिहार में अगर ये एसआईआर नहीं शुरू किया जाता तो शायद इतना कुछ सामने भी नहीं आता जितना अब सामान्य नागरिक निकाल कर दे रहे हैं। सर, राहुल गांधी जी कल यात्रा कर रहे हैं सासाराम से पटना तक के। 17 दिन की यात्रा होगी, 1300 किलोमीटर की यात्रा। और इसमें जो वोटर अधिकार यात्रा है, ये कि जो वोट की जो चोरी हो रही है उसके खिलाफ ये यात्रा है। जन जागरण होगा, यूथ लोगों को जोड़ने की बात हो रही है, ताकि जो वोट चोरी करके ये सरकार बना रहे हैं उसके खिलाफ ये लड़ाई है। तो ये अभी जो सरकार बनी है वोट चोरी करके बनी है। कल से सासाराम से हम लोग जो है वोटर अधिकार यात्रा जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। कल हम सब महागठबंधन के साथी रहेंगे, साथ में राहुल गांधी जी भी हम लोगों के साथ जो है यात्रा में कई दिनों तक हम लोग कई जिलों में हम लोग जाएंगे। और इस यात्रा में लोगों को जो संवैधानिक अधिकार जो मिला हुआ है वोट देने का, हम लोगों की कोशिश है लोगों को जागरूक करें ताकि किसी भी मतदाताओं का जो है नाम ना छूटे। So as Rahul Gandhi prepares to launch his Voter Adhikar Yatra, the Election Commission is also set to hold a press conference at 3 p.m. today. This will be the first press conference by the Election Commission following the special intensive revision of the electoral rolls in Bihar. Now, while there is no official word as to what will be the subject of the EC's press conference, it is expected that the poll panel will counter the opposition's allegations of vote theft. Remember, after Rahul Gandhi's press briefing in which he alleged that 1 lakh votes were stolen in one particular assembly segment in Karnataka, the poll panel had asked him to submit a complaint on oath, but Rahul Gandhi has still not done so. The EC, though, has issued a press note where it has reiterated that political parties were involved at each and every stage of preparation of the electoral rolls. But in just a short while from now, Rahul Gandhi is all set to launch his yatra. Let me go across to my colleague Ranjita, who's joining us on the broadcast. Ranjita, it's a big day today ahead of the Bihar elections. We're going to be seeing Rahul Gandhi launching his yatra. What are the details? What time is the yatra going to begin? And are also allies, senior leaders of the Congress party going to be in attendance?
बिल्कुल, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की ये बड़ी रणनीति और चुनावी मोहरा हम कह सकते हैं कि महागठबंधन ने अपनी तरफ से खेला है। हालांकि कहीं न कहीं कमजोर दिख रही है महागठबंधन। बीजेपी और तमाम दूसरी पार्टियों का, जेडीयू का कहना है कि कांग्रेस और महागठबंधन के पास किसी तरह का एजेंडा नहीं है। इसी वजह से वोटर अधिकार यात्रा या ऐसा की प्रक्रिया पर वो सवाल उठा रहे। लेकिन महागठबंधन पार्टियों को ये लगता है, राहुल गांधी को लगता है, तेजस्वी यादव को लगता है कि ये एक जन आंदोलन बन सकता है और लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यही वजह है कि एसआईआर को लेकर जहां संसद के अंदर प्रदर्शन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा महागठबंधन निकालेगी। राहुल गांधी इस यात्रा में होंगे, तेजस्वी यादव इस यात्रा में होंगे और तकरीबन 16 दिन ये यात्रा चलनी है, सासाराम से लेकर बिहार के पटना तक, और पटना में एक विशाल रैली गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा। किन जिलों में ये यात्रा गुजरेगी? हालांकि ये वो जिले भी है जिसमें कांग्रेस पार्टी मजबूत है, लेकिन वो तमाम जिले भी शामिल किए गए हैं जहां महागठबंधन का वोट बैंक मजबूत है। और यही वजह है कि इस यात्रा का रूट मैप सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं बल्कि महागठबंधन की तमाम पार्टियों ने मिलकर बनाया है। सासाराम से औरंगाबाद, पूर्णिया, इसके अलावा अलग अलग जिले, चाहे वो सीतामढ़ी की बात की जाए या फिर छपरा की बात हो, ये तमाम जिले उसमें शामिल है और 1300 किलोमीटर की ये यात्रा पूरी की जाएगी। हालांकि ये यात्रा जो है वो हाइब्रिड रखी गई है, यानी कुछ जगहों पर राहुल गांधी और तमाम जो नेता है वो पैदल चलेंगे, लेकिन कुछ जगहों पर गाड़ियों से भी जाएंगे, लोगों से संवाद किया जाएगा और एसआईआर की प्रक्रिया और वोट चोरी, जो 2 मुद्दे हैं बिहार में ज्वलंत मुद्दे माने जा रहे हैं, इन मुद्दों से लोगों से बातचीत करेंगे और उन इंटरेक्शन के बाद मीडिया से बात होगी, छोटी नुक्कड़ सभाएं की जाएगी। तो एक तरह से ये पूरा प्लान जो है वो तैयार किया गया है। ये भी ध्यान रखा गया है कि जिन जिलों में जो पार्टियां मजबूत है वो नेता राहुल गांधी के साथ जुड़ेंगे। पहले ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव पूरी यात्रा में नहीं होंगे, आज सासाराम के शुरुआत में राहुल गांधी के साथ दिखेंगे और कुछ एक जिलों में वो साथ होंगे, लेकिन अब आरजेडी सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि लगभग सभी जिलों में तेजस्वी यादव भी दिखेंगे और कहीं न कहीं जो गठबंधन की मजबूती है तमाम वो नेता भी साथ दिखेंगे जो बिहार में कांग्रेस के और आरजेडी के मजबूत चेहरे हैं। Okay, all right, Ranjita, thank you for joining us. We'll come back to you for those updates. This is a big update. Tejaswi Yadav is going to be with Rahul Gandhi all through the yatra, so it's also going to be a unity of the allies that will be on display as the Congress party takes it to the streets over its charge of vote theft. Meanwhile, while the Congress party is prepared to take this fight to the streets and is beginning its yatra, the BJP and ally JDU have dismissed Rahul's yatra, saying it will have no impact on the ground. जब से ये शुरू हुआ एसआईआर बिहार में, ये आप लोग भी जानते हैं कि एसआईआर बिहार में ही हो रहा है, देश में कहीं नहीं हो रहा है। पूरे बिहार में कोई इशू लगता है आपको? कहीं प्रोटेस्ट हुआ हो, कहीं कोई निकला हो कि मेजर गड़बड़ हो गया? हम लोग भी अपने पार्टी के नाते बिहार के हर एक क्षेत्र में लोगों से बात किए, तो कहीं तो कोई कंप्लेन नहीं दिया। न इलेक्शन कमीशन बोला कि कागज ला के दीजिए, कोई कंप्लेन दिया है। तो जब बिहार के लोगों में मुद्दा नहीं है तो कहाँ घूमने जा रहे हैं? कहीं खटिया लगा लेंगे, कहीं टेंट में बैठ जाएंगे। तो चुनाव है तो अभी तो सब तरह का कहानी देखिएगा। अलग से बात करेंगे, वो तो करते रहते हैं, यात्रा, पदयात्रा, आयोग को गाली देने की यात्रा, संविधान को शर्मिंदा करने की यात्रा, लोकतंत्र को कमजोर करने की यात्रा, यात्राएं चलती रहती हैं, चलने की फिर भी हार जाते हैं।